سب سے پہلے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نیک کام کرنے جا رہے ہیں تو شیطان ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹاتا ہے اور ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے, شیطان سے خود کو بچانا ہے. اعوذو اس کا کیا مطلب ہے؟ اعوذو بولتے جائیں. میں پناہ میں آتا ہوں. میں پناہ میں آتی ہوں. باللہ پناہ میں آتی ہوں. ہو گئے اللہ کی پناہ میں آتا ٹکڑے بتائیں. باللہ کے ٹکڑے کتنے؟ دو ہے. وہ ہے ماشاءاللہ. اور من کا مطلب آپ سب کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. الشیطان اور رجیم. الرجیم کا مطلب جو مردود ہے. مردود. اچھا, اب ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے تقریباً 12 عادات سیکھی ہیں تعوذ سے, تسمیہ اور سورۃ فاتحہ سے. سب سے پہلی عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پناہ مانگنی ہے, سیفٹی فرسٹ. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا ہے تاکہ شیطان ہمیں گمراہ نہ کر سکے. اس کے بعد سورۃ فاتحہ ہے. یہ قرآن پاک کی پہلی مکمل سورت ہے اور یہ اتنی عام ہے کہ ہم ہر نماز میں, ہر رکعت میں ہمیں اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا. پہلے ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی, اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو ٹکڑے. کون کون سے؟ نام بی اور اسم. رحمان جو مہربان ہے اور رحیم. دوسری عادت جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ بسم اللہ سے, کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. تیسری عادت ہم اسی سے سیکھتے ہیں الرحمن اور رحیم سے, اللہ کے بارے میں اچھا رکھیں کیونکہ وہ رحمان اور رحیم. فاتحہ. الحمد, الحمد کے کتنے معنی ہیں؟ الحمد تمام تعریفیں اور تعریفیں اور شکر. للہ کے ٹکڑے کریں ذرا. للہ دو ہے. اللہ لی مطلب لی اور اللہ. ماشاءاللہ, زبردست. اور العالمین کا مطلب تمام جہانوں کا. اچھا, اس سے ہم الحمد سے ہم نے ایک عادت سیکھنی ہے کہ خوب علم حاصل کریں تاکہ تمام اللہ ہم ہر وقت دل سے اللہ کی تعریف کر سکیں. اور ہم کا دوسرا معنی ہم نے پڑھا شکر ہے. اس سے ہم نے عادت نمبر 5 سیکھنی ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کریں. الرحیم, الرحمن کا بہت مہربان. اور الرحیم رحم کرنے والا. الرحمن اور الرحیم میں مجھے فرق کون بتائے؟ رحمان بہت رحم کرنے والا, رحیم اور شدت سے رحم کرنے والا ہے. الرحمن, ایک میں بہت زیادہ جوش آیا ہے اور ایک میں تسلسل کا اظہار ہے. رحمان کا مطلب شدت سے مہربان اور رحیم کا مطلب مسلسل رحم کرنے والا. کنٹینیولی مرسیفل. جی ماشاءاللہ, کنٹینیوسلی مرسیفل. اور اس سے ہم عادت نمبر 6 سیکھتے ہیں کہ دوسروں پر رحم کیا. ہم نے اس میں پڑھا رب. تو رب کے معنی ہے پالنے والا, جو اللہ یہ کرتا ہے, کہ مالک ہے, وہ ہمارا حاجت خواہ ہے, نعمتیں دیتا ہے, جب مشکلات میں پھنستے ہیں تو وہی نکالتا ہے, ہر چیز ہر نعمت دینے والا ہے. مالکی یوم الدین. مالک ہے. مالک. اچھا, اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مالکی اس کا مطلب مالک ہے, لیکن اگر مالکہ آ جائے, تینوں پہ زبر آ جائے, فرشتہ جیسے ملک الموت, تو مالکی. جو اگر اس کا نہیں آتا ہے دوسرا آ جاتا ہے تو آپ نے دھیان سے, زیر زبر سے بہت فرق پڑتا ہے, تو دھیان سے کرنا. یوم کا مطلب دن. دین کے دو معنی کیا ہے؟ دین کے دو معنی بدلہ کا گزارنے کا طریقہ. بدلہ اور نظامی زندگی, یعنی کہ زندگی گزارنے کا طریقہ. بدلہ یعنی کہ اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا. اس سے ہم عادت نمبر 7 سیکھتے ہیں مالک یوم الدین سے, کہ ہر کام جو ہے وہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ آخرت کی تیاری کے لیے کریں, آخرت کو سامنے رکھ کر کریں. ایاکا نعبدو, ایاکا تیری با ایاکا, اس کے ٹکڑے کریں. 3 ٹکڑے. وا اور یا,
का तीन तेरी का से तीन टुकड़े इसके। तुझी तीन से टुकड़े बनेंगे, वा और इया सिर्फ या का तेरी, तुझी। ठीक है, तीन टुकड़े बनेंगे। नस्ताइन, नस्ताइन मदद हम मदद चाहते चाहते हैं। तो आप देखिए कि नाबुदू और नस्ताइन दोनों नून से शुरू होते हैं, ये इस्तेमाल होता है ना हम इसमें। नाबुदू। इसमें आपने हम इबादत इबादत ध्यान में हम रखनी है, इबादत इया का करते हैं। नाबुदू कि हर काम में इबादत की नियत हो, और इया का नस्ताइन कि हर काम में अल्लाह मदद चाहिए। सिरात वल मुस्तकीम, इहदिना, इसके कितने टुकड़े होंगे? हमें हदायत दे। दो दो कौन से? और ना हिदायत हमें हिदायत दे। ना हमें हमें इहदी हिदायत दे और ना हमें। अस्सिरात हमें रास्ते की और अल मुस्तकीम, रास्ता सीधे रास्ते सीधा। इसमें देखिए सिरात के साथ भी अल लगाया गया और मुस्तकीम के साथ भी। यहाँ पर अल का क्या मतलब है? अल का मतलब प्रॉपर नाउन। दोनों ये इसम खास रास्ता, खास। अल जो है वो उसको खास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। दा सिरातल जैसे द मुस्तकीम। हिदायत दे हमें। हिदायत की जो जिद है वो जलालत है, ठीक है, ये आपने इसको याद रखना है। और इससे हमें जो है वो अगली काम में अल्लाह से हिदायत मांगी जाए, अल्लाह से हिदायत दी जाए। और फिर अतुल्लज़ीना नमता अलैहिम, अनअमता अनअमता आपने इनाम नाम किया तूने, तूने अलैहिम इन पर उन पे। आदत नंबर अलैहिम, 11 कि हमेशा इन पर। अच्छे मॉडल और नमूनों के तरीकों पर चलना चाहिए। सिरातल लजीना अनअमता गैरुल मग़दूबि अलैहिम, गैर कमानी गैर ना हाँ, और अल गजब किया गया। गजब किया गया गजब किया ताला अलैहि उन सब पर द्वालीन, द्वालीन जो जो गुमराह गुमराह हुए। हुए। ना आदत नंबर वालिन 12 है कि गुमराह बुरे मॉडल और नमूने से दूर भागने की दुआ की जाए। अच्छा, अब मुझे कौन मग़दूब और द्वालीन, ये इन दोनों में क्या फर्क है? मग़दूब और द्वालीन। मगदूब जिस पे गजब किया गया, मगदूब वो जो सब कुछ जानते गुमराह बूझते जो गुमराह हुए, और गुमराह जो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल थे, उनको पता ही नहीं था इल्म का। जी, मग़दूब जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे, और द्वालीन जो जानते ही नहीं थे और सही बात जानने की कोशिश भी नहीं करते थे, उसके बगैर ही अमल करते रहे। ठीक है, जो जानते ही नहीं सही बात जाने बगैर अमल करते हैं वो द्वालीन। इन दोनों का फर्क आपने याद रखना। अच्छा, मुझे को बताएगा कि सूरह फातिहा का खुलासा क्या है? कौन सी आयत हमें इसका खुलासे की तरफ इशारा करती है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हिदायत की दुआ है, ठीक है, सीधे रास्ते पर चलने की दुआ। सिरातुल मुस्तकीम। मुस्तकीम उसका सूरह फातिहा का खुलासा है, आपने इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके अजान की तरफ, अजान का खुलासा क्या है? अल्लाह ताला खुलासा कौन सी आयत है? नंबर 6, इहदिनस सिरात वल मुस्तकीम, हिदायत की दुआ, यानी कि सीधे रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं। तो ये सूरह फातिहा का खुलासा। की तौफीक। अजान का खुलासा आपा क्या है? आपा आपने वो मालिक का क्या बताए थे? मालिक के दो है, एक मलिकुल मौत और एक मालिक। मालिकी का मतलब है मालिक है, और मालिक मालिक। का फरिश्ता। एक मालिक और एक मालिकी सबर और देर का फर्क। जी, जी सबर हो जाएगा। अच्छा, अजान का खुलासा बताएगा? अजान का खुलासा अल्लाह ताला की औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत दी जाती है, ऐलान किया जाता है। ये इसका खुलासा। अल्लाहु अकबर, क्या मतलब इसका? अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा। अल्लाह सबसे बड़ा। अल्लाह सबसे का बड़ा। किसी से कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है, वो बड़ा है। कबीर का मतलब बड़ा, और अकबर सबसे बड़ा। अशहदु, अशहदु का क्या मतलब है? मैं मैं गवाही गवाही देता हूँ। अशहदु का इशारा किस तरफ करेंगे? अपनी तरफ अपनी तरफ, अपनी तरफ अपनी अपनी तरफ। की तरफ, ठीक है, मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। अन का मतलब के
जो। अब इस अन को आपने याद रखना है, ठीक है। अन का मतलब के, ला का मतलब नहीं नहीं इलाहा के मानी आपने याद रखने हैं। इलाहा मानी है इबादत की कोई जाए, पूजा परस्तिश की जाए, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है और जिसका हुक्म माना जाए, जिसकी इताअत की जाए। ये इसके इलाहा के 3 आम मानी आपने याद। फिर अशहदु अन्ना, यहाँ पर अन्ना का मतलब क्या है? के अन्ना, अन का मतलब भी के और अन्ना का मतलब भी के। रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को वाज़ेह किया गया है, का मतलब भी के और अन्ना का मतलब भी के। अच्छा, मुझे कोई इन्ना का मतलब बताए। इन्ना, इन्ना बेशक बेशक माशाअल्लाह, जबरदस्त, बेशक। और इन का मतलब अगर इनसे अगर, वेरी गुड, जबरदस्त। अगर, और इसके लिए रेफरेंस है इंशाअल्लाह। और इन्ना, अगर अल्लाह ने चाहा। अल्लाह मस्वाबिरी। इस टेबल में जरा इन चारों को आप देख लें। अन का मतलब के, अन्ना का मतलब के, और इन्ना, इनका अगर ये आपने इन चारों का अलग अलग जो फर्क है उसको और इनका मफहूम अच्छी तरीके से याद कर। अन्ना, इन्ना, इन्ना। अन और अन्ना एक ही हैं, इन और अलग है। अन और अन्ना का मतलब के, इन अगर, और इन्ना बेशक। हैया अलग, हैया का मतलब आओ भैया का आओ तरफ नमाज। सलात, सलात के मानी नमाज। अस्सलातु प्रॉपर नाउन। ला का मतलब अब इसकी कॉल आ रही थी। नहीं ला का मतलब नहीं नहीं। इलाहा कोई माबूद, कोई माबूद इल्ला, इल्ला का मतलब सिवाय सिवाय। एक बात और आपने याद रखनी है कि नमाज के आखिर में वो अल्फाज दोहराए जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दोहराने का मकसद क्या है कि अल्लाह ताला तो बड़ा है, इस बात का ऐलान है कि को मानते हो तो आ जाओ, ना भी अगर हम उसकी बड़ाई को ना भी मानते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बड़ा ही रहता है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी अज़ान के कौन से कलमात में ये बात कही गई, ठीक है। तो ये आखिरी जो कलमात हैं उनमें ये बात कही है कि अल्लाह ताला की बड़ाई को कर आ जाओ, और अगर ना भी माने तो वो तो बड़ा है, उसकी बड़ाई पर कोई फर्क नहीं है। हम नहीं मानेंगे तो हमारा अपना नुकसान। में हैय्या अल फलाह के बाद 2 मरतबा कौन से अल्फाज दोहराए जाते हैं? सलातु खैरुम मिनन नाउ। कितनी मरतबा दोहराते हैं? 2 मरतबा। माशाल्लाह। और अन्नौम का मतलब कौन बताएगा? नींद से। और खैरुन बेहतर है। बेहतर, मिन से। माशाल्लाह। अस्सलात नमाज खैरुन बेहतर है, मिन से, अन्नौम नींद से। के अलावा जब जमात खड़ी होती है तो उससे पहले अकामत के कुछ कहते हैं, अकामत में कुछ इजाफी अल्फाज हैं सलात के बाद की जाते हैं कामत सलात। अच्छा, ये कितनी दफा दोहराते हैं कामत सलात के अल्फाज? 2 बार। माशाल्लाह। कद का मतलब खड़ी हो चुकी है या खड़ी हो गई। अलबत्ता कामत का मतलब कौन बताएगा? खड़ी हो गई। खड़ी हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। कद अलबत्ता कामत खड़ी हो गई, अस्सलात नमाज। बहुत अहम बात आपने याद रखनी है कि अजान इस बात का ऐलान है कि लोग बाहर से मस्जिद में आए, नमाज का वक्त हो गया है। और अकामत इस बात का ऐलान है कि जो मस्जिद में आ चुके हैं, कोई अगर कुरान पढ़ रहा है तो उसको ऐलान है कि जमात खड़ी होगी, ठीक है। अजान बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है और अकामत जो मस्जिद में मौजूद उनको बुलाने। अब हम देखते हैं वजू के पहले और बाद की अज़कार। वजू के पहले दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वजू के बाद की दुआ क्या है?
अशहदु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और कोई मुझे बताएगा कि इस बारे में हदीस क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया इस दुआ के बारे में? जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, जन्नत के ध्यान से 8 वज़ू दरवाजे करें दरवाजे खुलेंगे। और फिर ये दुआ करें तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं और जिससे चाहे दाखिल हो जाए। इस बात को आपने याद, ये तकरीबन वही सारे अल्फाज हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वादा हूँ का मतलब वो अकेला है और ला शरीका, नहीं कोई शरीक तेरा। वहदानियत का इकरार है, ठीक है, 3 मरतबा वहदानियत का इकरार किया जा रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कहते हैं वादा हूँ वो अकेला, तीसरी बात ला शरीका लहू, उसका कोई शरीक नहीं, कि हम शिर्क से मुकम्मल बेजारी का ऐलान कर रहे हैं। और इसमें जो है अब्दुहु का मतलब क्या है? बंदा, अल्लाह का बंदा, बंदा अब बंदा उसका उसके बंदे, अब बंदा और हूँ उसके बंदे, और वा रसूलुहु और उसका रसूल, उसके रसूल। तीन है टुकड़े, और उसके रसूल, माशाल्लाह, वा रसूल और रसूल हु। अच्छा, इसमें मुझे बताएं कि अब तो हु का इजाफा किया गया है, इसका क्या, इसकी क्या ताकि ये इसका ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। पहली जो थी कि उन्होंने जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया जी, तो ये वाज़िया कर दिया कि शिर्क का दरवाजा बंद कर दिया है, ठीक है। ये कलमात दोहराते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि शिर्क बिल्कुल ममनू है और मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं। अगली बार अल्लाह में जअलनी मिनत तव्वाबीन, अजअलनी इसका मतलब है बना दे मुझे, ए अल्लाह ए अल्लाह और तव्वाबीन खूब तौबा करने वाले, करने वालों में। तवाब का मतलब क्या पढ़ा हमने? तौबा करने वाला, तौबा करने वाला, खूब तौबा करने वाला, ठीक है। बार तौबा करने वाला, इसके टुकड़े करें, तीन टुकड़े और बना दे होंगे, वाह और इजअल बना दे नी मुझे, इसके 3 टुकड़े मुतताहिरीन, साफ रखने वालों में, पाक साफ रहने वालों में से। समझिए, अल्लाहुम्मा के टुकड़े बताएं जरा। ए अल्लाह, जी सिस्टर, मेरा ख्याल है आप इसको है, सिस्टर अनीला इज शायद वेटिंग, आप प्रोबेबली अभी उनका है। जी सर फिनिश करें सिस्टर, बहुत ज्यादा टाइम लेगी के लिए। सिस्टर अनीला जो है वो कंटिन्यू करेंगी, जज़ाकल्लाह खैर। दूसरी भी निकालो ना, दूसरी वो जो वो पीछे से वो निकालो। काइंडली अपने आप को अनम्यूट कर लें, सारे म्यूट कर लें, म्यूट सॉरी था मेरा तो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेयर हो रही है? नहीं अभी नहीं हुई, शेयर करें, शेयर। एक सेकंड। जी हो गई शेयर? हो रही अभी हो रही यस हो गई है। ये हो गया, स्टार्ट करें। जी अब हम शुरू करते हैं। रुकू के बाद और सजदे की जो दुआएं हैं उन पे आते हैं। इसमें है सुबहाना। सुबहाना का मतलब है पाक है,
रब्बी, रब्बी का मतलब क्या हुआ? मेरा रब। मेरा रब। फिर बी कौन से वाला है? ये मेरा, मेरी तरफ वाला रब, मेरा, मेरा रब। अजीम, बहुत वाला। सही। इस जिक्र में क्या कितनी बातें आ रही हैं? 4 बातें आ रही है। 4 बातें आ रही हैं, वेरी गुड। अच्छा, ये देखेंगे समी अल्लाह, समी अल्लाह, समी अल्लाह को हम ब्रेक करेंगे, यानी समी का मतलब क्या है? अल्लाह, सुन ली अल्लाह ने, अल्लाह ने। लीमन, लीमन के कितने दो टुकड़े। लीमन जिसने जिसने और ली के लिए, ली, की और लिए, जिसने। हमीदाहू, हमीदाहू के कितने टुकड़े होंगे? दो वो कौन टुकड़े। हमद और हु, एक हम्द, तारीफ, हु और हाँ उसकी, उसकी, ये वो वाला हुआ है, हु वाला, ठीक है। उसकी रुकू से उठने के बाद की दुआ है रब्बना, रब्बना, रब्बना हमारे रब, हमारे रब। खाना के 2 टुकड़े हैं, एक रब और ना, ए हमारे रब, ए हमारे रब। बहुत अच्छा। वाला का कितने होंगे? 3 टुकड़े, 3 टुकड़े। वाला का के 3 टुकड़े, वाह और ला लिए का के तेरे। वेरी गुड। वाला का अल्हम्दु, वाला कल हमदु, इसका क्या मतलब है? हम अल्लाह की तारीफ, हर किस्म की तारीफ, हर किस्म की तारीफ तेरे लिए। तारीफ और एक और जिक्र है, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, हमिदहु रब्बना व लकल हम्दु मिल्लस समावात। इसमें मिलआ, मिलआ का मतलब क्या है? भर कर, भर कर, समावात, आसमान, आसमान, अर्ज़ का क्या मतलब है? जमीन, जमीनों, जमीन। बैनहुमा के टुकड़े करेंगे, 2 बैनहुमा 3 टुकड़े, बैनहुमा 2 टुकड़े, 2 टुकड़े। बैना में दरमियान, जी, इनके दरमियान में 2 टुकड़े होंगे। आगे चलते हैं। वहाँ मिलआ और भरकर, माँ का मतलब क्या है? जो तू चाहे, जो शीता, तू चाहे, होगा तू चाहे, मिन शैइन, चीज में से, आदू, हर चीज, इसके बाद। बिल्कुल सही। अब हम सजदे की तरफ आ जाते हैं। सजदे की तस्वीर में क्या है? वही सुभाना का मतलब पढ़ चुके हैं, रब्बी का मतलब पढ़ चुके हैं, सबसे बुलंद, सबसे ऊपर, सबसे बुलंद। तो सजदे की हालत कौन सी हालत होती है असल में? अल्लाह से बहुत करीब होते हैं उस वक्त हम, बहुत अल्लाह से मुकम्मल सबसे करीब हालत होती है। आज हम देखते हैं, तशहुद की तरफ आ जाते हैं। अत्तहियातु, अत्तहियात, अत्तहियात कौन सी बातें? सभी कौली इबादतें, जिक्र, तिलावत, नसीहत, जो जुबान से करते हैं कौली बातें, जैसे अच्छी बात करना, तिलावत करना, नमाज पढ़ना। लिल्लाही, लिल्लाही के टुकड़े करेंगे, 2 अल्लाह ही के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह और ली, लिए, अल्लाह, अल्लाह के लिए। वस्सलावातु और सभी बदनी इबादत, नमाज, रोजा, हज, मदद, तालीम, दावत, तबलीग। बातें में नमाज, रोजा और तरबियत वगैरह सर। वत्तय्यिबातु, सभी माली इबादतें, माली बातों में आ जाता है, सदका, ज़कात, सही। इसके बाद क्या है? अस्सलामु, अस्सलामु का सलाम हो, अलैका, सलाम हो आप पर, हाँ, ये वाला का आप पर।
अय्युहन नबिय्यु, अय्यु नबी सल्लल्लाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वरहमतुल्लाह और रहमत अल्लाह की और उसकी बरकत हो उसकी उसकी आप सलाम अलैना हम पर और अलाई पर ना हम पर और ऊपर इबादिल्लाही अल्लाह के बंदों के सालिहीन नेकोकार इनाम किन लोगों पर है? इनाम याफ्ता लोग कौन कौन से हैं? अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। ये है इनाम याफ्ता जो लोग हैं। इसके बाद है अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। अन का मतलब क्या है? और नहीं कोई माबूद कोई माबूद यहाँ अल्लाह का वबरकातुहू। मैडम ये देखें ना, चैट में बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही, सब लोग बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही, तो इसका इतना फायदा नहीं है। तो इसका कोई तरीका करें, आप बताएं तो लोग समझे, कोई एक जवाब दे या चंद, तो इस तरह से समझ में आए तो फिर फायदा नहीं है। शुक्रिया। समझ वैसे आ रही है, सबको समझ आ रही है। चले मैडम आके आप चले ना, कंटिन्यू करें, फिर करते हैं नेक्स्ट सेशन में भी करते हैं, म्यूट कर देते हैं सारा। सबको समझ आ रही है वैसे। व अशहदु, और अशहदु का मतलब क्या है? मैं गवाही देती हूँ अन्ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु के बंदे हैं। अब्द दो टुकड़े हैं, बंदा हूँ उसके। सही। व रसूलुहु, और रसूल कितने टुकड़े होंगे? 3 टुकड़े। 3 होंगे, वाओ रसूल हूँ, रसूल और हूँ। वेरी गुड। इसके बाद हम चलेंगे मैम, यहाँ अन्ना का बेशक आएगा कि के ही आएगा? इन्ना का बेशक है, इन्ना का बेशक है, ये अन्ना है मतलब के। जी। और अन्ना का मतलब होता है के, इन्ना बेशक। ये आप ये इस टेबल को अच्छे से याद करें। अभी प्रीवियस सेशन में अभी जो अभी सिस्टर रुकैया करवा रही थी ना, तो उसमें इन्ना, अन्ना, इन, ये सारा डिफरेंस सारा उसमें है। अब आगे चलते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ हम कैसे करते हैं? दुरूद भेजकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करते हैं। आज हम तकरीबन 1500 साल बाद हजारों मील दूर मुसलमान हैं, तो अल्लाह के फजल के बाद आपकी कुर्बानियों के नतीजे में। फिर हम आगे आ जाते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। सल्ली का मतलब क्या है? रहमत भेज। अला ऊपर, मोहम्मद अला, और आल का मतलब क्या है? आल पर। आल आते हैं पैरोकार मानने वाले। आल के 2 आते हैं, खानदान, आपका खानदान और आपके मानने वाले, आपकी औलाद और अज़वाज, और आपकी बात करने वाले मानने वाले। उसके बाद है कमा का मतलब क्या है? जैसा के। जैसे सल्लैता, रहमत भेजी तूने। हाँ, रहमत भेजी तूने। अला इब्राहीम, इब्राहिम के ऊपर। इब्राहिम एग्जैक्ट नेम है। वाला, और आल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो बेटा मैं क्लास में। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात किस लिहाज से हो रही है कि आपको क्या दिया गया था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कोई बताए? आप तमाम उनके इमामत आपको दी गई थी, ऐसी दी गई थी। उसके बाद आपको जो है वो ऐसा मुकाम दिया गया कि सारे जितने भी वो हैं मुसलमान, ईसाई, यहूदी सभी
آپ جو ہیں وہ نبیوں میں سب سے افضل تھے اور اس طرح جو ہے انا کا بے شک آپ یا تو کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ دو حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا، بزرگی والا. بالکل صحیح. پھر اس کے بعد ہے اللہم بارک. بارک کا مطلب کیا ہے؟ برکت برکت عطا فرما. علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا. جیسا کہ برکت نازل فرمائی. بارکتا تو نے برکت بھیجی. علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کے ابراہیم اوپر پہلے دیکھ چکے ہیں. کا ہم دیکھ چکے ہیں. چلتے ہیں تو ہے دعا کی طرف آتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب آتینا. دے ہم آتینا کے ٹکڑے کریں گے دو ہوں گے، ہمیں اور دے. آتی اور نہ. دنیا آتینا دنیا میں. فی مطلب میں، دنیا مطلب دنیا. اور حسنات کا مطلب کیا ہے؟ بھلائی. صحیح ہے. وفی آخرہ اور آخرت میں. اور آخرت میں. حسنا بھلائی. پھر وہی بھلائی. واقینا. واقینا کے مطلب ٹکڑے کریں گے 3 ٹکڑے ہوں گے. واقینا. بچانا ہمیں. 3 ٹکڑے ہوں گے، واہ کی اور نہ. 3 ٹکڑے ہوں گے بچا اور نہ ہمیں. اور بچا ہمیں. جی بالکل. عذاب سے. عذاب سے. کون سے عذاب سے؟ آگ کے عذاب سے. نماز کے بعد پڑھنے کی اہم دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک. اعنی کا مطلب کیا ہے؟ مدد فرما میری. مدد فرما. آپ بھی میرے ساتھ کلاس لو گے؟ ذکری کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ذکر پر یا آپ کے ذکر پر. ہاں تیری یاد کرنے پر. و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر. تیرا شکر کرنے پر. عبادتی کا اور اچھی عبادت تیری اچھی عبادت کرنے. تو اس میں کتنی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ شکر ذکر کا اور عبادت کا. 3 باتوں کا. اس کے بعد ہے سورہ اخلاص ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دیجئے. وہ اللہ اللہ احد ایک ہے. ٹھیک ہے. یکتا ایک. اور سمجھ کا مطلب کیا ہے؟ بے نیاز. لم کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. نہ اس نے کسی کو جنا. لم کا مطلب نہیں. یلد مجہول. اس سینس میں آتا ہے یولد وہ جنا گیا. بس اس کے بعد ہے ولم اللہ نہیں ہے اس کا. اور نہیں ہے اس کا. کفون کا مطلب ہے ہمسر. ہمسر یا ہم پلہ. احد کوئی. سورہ اخلاص میں احد جو ہے وہ 2 جگہ استعمال ہوا ہے. دونوں کی جگہ جو ہے وہ ڈفرنٹ معنی ہے اس کا. اس چیز کو یاد رکھیے گا. ہم چلتے ہیں سسٹر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا اب جس سے پوچھا جائے گا کائنڈلی وہ بولیے گا. ذرا کائنڈلی مہربانی کیجیے گا جس سے پوچھیں گے بھائی صاحب انہیں وہی بولیے گا اور اپنے آپ کو میوٹ رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سبق میں ہم گرامر کے پہلے 6 اسباق کی دہرائی کریں گے.
टाइम कम होने की वजह से मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी आपको ये दोहरा सकूं। इसम, फेल, हरफ ये आप जानते हैं। जमा बनाने के कई तरीके, उनमें से एक तरीका ये है इसम के आखिर में वाव नून या फिर या नून लगाते हैं। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, मुस्लिमन से मुस्लिमीना, मुस्लिमीन से मुस्लिमीना। याद रखने की यहाँ ये एक बात है कि दो ज़बर या दो ज़ेर दोनों के साथ जमा बनाते हुए या नून लगाते हैं। मोनस की जमा बनाने का तरीका ये है कि जो मोनस की इलामत यानी गोल ते है उसको हटा के अलिफ ते लगा देते हैं। और दो पेश वाले इसम के लिए दो पेश, और जिसके साथ दो ज़बर या दो ज़ेर दोनों हालतों में दो ज़ेर आता है। जैसे मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन, मोमिनातुन से मोमिनातुन, सालिहातुन से सालिहातुन, यानी दो पेश लगा के जमा में भी। और दो ज़बर वाली हालतें देखिए, मुस्लिमातन से मुस्लिमातीन, मुस्लिमातीन से मुस्लिमातीन, दो ज़बर दो ज़ेर दोनों के लिए दो ज़ेर आते हैं। नए अल्फाज ये सवाल जवाब के लिए इस्तेमाल होते हैं। हल और नाम, हल के मैनी होते हैं क्या, नाम के मैनी होते हैं जवाब। आइए इसकी प्रैक्टिस करें। कौन ये सवाल जवाब कराएगा, प्लीज हैंड रेज कीजिए। यस, चलिए जारिफिया आप जवाब दिया। हल हुआ मुस्लिम, क्या जवाब होगा? हुआ मुस्लिम। गुड। हल हुआ मुस्लिमून, हम हुआ मुस्लिम। हल अंता मुस्लिम, दूसरी दफा नाम आना मुस्लिम। हल अंतुम मुस्लिमून, नाम नहनु मुस्लिम। नहनु मुस्लिम। अब तक आप चुप क्यों नहीं रही? कई लफ्ज में एक होता है मन, मन के मैंने होता है कौन, तो इसके एक सवाल जवाब कौन करेगा? यस, समिया अब्दुल वहीद, प्लीज आप जवाब दीजिए। मन हुआ, अनम्यूट कीजिए और जवाब दीजिए। समिया अब्दुल वहीद, यस। मन हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिम। मन हम मुस्लिमून। मन अंता, हुआ मुस्लिम। अना मुस्लिम। उसे जवाब देने दीजिए भाई साहब, उसको जवाब देने दें। आप अपना म्यूट करके अपने दोहराते रहें। मन अंतु, नहनु मुस्लिमून। गुड। ये कुछ अल्फाज हैं, हरूफ इन्हें कहते हैं। ये जब किसी के साथ जोड़ते हैं ज़मीर के साथ तो उसके मायने में ये इजाफा हो जाता है। वा के मायने और, फा के मायने बस, और ये आ के मायने होते हैं क्या। हल की तरह ये भी सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। आइए इसकी मशक करें। ये टेबल कौन दोहराएगा भाई? ये सईद साहब आप दोहराइए। हुआ, वाह हुआ, वाह हुआ का तर्जमा करें और इशारा भी करें। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सही, हेलो, आवाज आ रही है? वाह हुआ क्या मायने है? वाह हुआ और वो, वाह हम और वो सब, वाह अंता और आप, वाह आना और मैं, वाह अंतुम और आप सब, वाह नाहनु और हम सब। यानी वाव का तर्जुमा सिर्फ इजाफा हो जाता है। इसी तरह फा के साथ होगा। कौन इसे कराएगा? हाँ जी, यस, सारा यूसुफ प्लीज आप कराइए। बताइए क्या तर्जुमा है? बस वो, गुड, फाहुम बस वो सब, वेरी गुड। फांता बस आप, फाना Good. बस मैं, फांतुम Good. बस आप सब, फनहनु बस हम सब। एक्सीलेंट। चलिए जी, अब अगला जो है टेबल देखते हैं। ये है ज़मारे मुत्तसिल, जुड़ के आने वाले जो है ज़मार। इनके मायने में सिर्फ ये फर्क आता है कि ये ताल्लुक को शो करते हैं। जैसे होगा उसका, हम उन सब का आपका, या याई मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। आइए इसकी मशक करें। कौन ये टेबल में स्टार्ट कराएगा जी? बेबी का, मरियम,
मरियम रियाज प्लीज आप कराइए बेही का, बेही तर्जमा कीजिए। मरियम रियाज अनम्यूट कीजिए और तर्जमा कीजिए बेही का। ओके, वो नहीं कर पा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। कीजिए बेही, बी ही उससे, बी हिम उन सब से, बी का आप से, बी मुझसे, बी कुम आप सब से, बिना हम सब से। अगला भी आप कराइए फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। ये तीसरा भी आप कराइए प्लीज। इलाही जी, अलैहि इस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। एक्सीलेंट, यस। ये हमने देखा था मुज़क्कर के लिए हु या ही इस्तेमाल करते हैं, बी ही या और फी ही और अलैहि, लेकिन मुअन्नस के लिए हा का इस्तेमाल होता है। ये अब आपने याद रखना, बीहा, फीहा, अलैहा। ये सवाल जवाब कौन कराएगा भाई? ये तो लिखे हुए हैं, मैंने छुपाए भी नहीं। सारा मिर्जा, सारा मिर्जा प्लीज अनम्यूट कीजिए और जवाब दीजिए, दोहराइए। हलिल्लाहु रहीम बिही, नामल्लाहु रहीम बिही। गुड। हलिल्लाहु रहीम बिहिम, नामल्लाहु रहीम बिहिम। जबरदस्त। हल फीही खैर, नाम फीही खैर, हल फीहिम खैर, नाम फीहिम खैर। जबरदस्त हो गया। अब आते हैं हरूफे जर। हरूफे जर ये 3 है, ये कौन मुझे बताएगा भाई? ये ली जो है इसकी मिसाल क्या है? एग्जाम्पल चाहिए मुझे। यस, ये मोहम्मद दाऊद ली का एग्जाम्पल दीजिए। याद करने के लिए क्या लफ्ज हम याद करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। मीन के लिए एग्जाम्पल दीजिए। मिनश शैतान। वेरी गुड। अन का एग्जाम्पल? रज़ी अल्लाहु अन्हा। तो आप सब मास्टर हो गए हो भाई। आ जाओ अभी टेबल करें। कौन करेगा? नया बंदा चाहिए। ये जिन्होंने कर लिया प्लीज छोड़ दें। नेक्स्ट, यस, आमना या अमीन है क्या? अमीन खान, अमीन खान आप कराइए लहू का टेबल प्लीज। ईमन खान। लहू, लहू लिए उसके, लका आपके लिए, उसके लिए, लहुम लकुम उनके लिए, आपके लिए, लना हमारे, लका लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना मेरे लिए। दूसरा टेबल कराइए मिनहू का। मिनहू, चले कोई और आ जाए भाई। नाजमा गफूर, चलिए आप कराइए मिनहू का टेबल। मिनहू उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आप से, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से। ये एक चीज आप सब जो है गौर से सुने, मैं हमेशा यही दोहराता हूँ, जब ये शद आ जाता है उसकी जब तक आप 2 आवाजें नहीं निकालते आप गलती करते हैं। मिन्नी, 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 मिन्ना। चलिए अनहु का टेबल कराइए। अनहु, अनहु उससे, अनहु उन सब से, अन का आपसे, अन्नी, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना मुझसे। टाइम कम है इसलिए मैं आपके बाकी टेबल जो है वो क्विकली करा देता हूँ। बताने की चीज ये है, हुआ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, हिया मुअन्नस के लिए होता है। हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमात, हुआ मोमिन, हिया मोमिनातुन, हुआ सालिह, हिया सालिहात, हुआ साबिर, हिया साबिरातुन, हुआ शाकिर, हिया शाकिरातुन। टाइम कम है नहीं वरना मैं ये आपसे करवाता, पता चल जाता है किस किस को याद है। रब्बोहू, रब्बोहा, दीनोहू, दीनोहा, किताबोहू, किताबोहा, रसूलोहू, रसूलोहा, इस्मोहू, इस्मोहा। यानी मुअन्नस के लिए हा लगा देते हैं।
माँ के मैनी क्या है, याद रखिए 2 मैनी होते हैं। एक तो ये है क्या, माँ दीनोहु, उसका दीन क्या है, दीनोहुल इस्लाम, उसका दीन इस्लाम है। माँ दीनोहुम, उन सबका दीन क्या है, दीनोहुल इस्लाम, उन सबका दीन इस्लाम है। माँ दीनों का, आपका दीन क्या है, दीनियल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। माँ दीनोकुम, आप सबका दीन क्या है, दीनल इस्लाम, हमारा दीन जो है वो इस्लाम है। दूसरा मैनी जो है का माँ के होते हैं नहीं, पहला था का, वो हमने की। अब ये देखिए यहाँ माँ के मैनी नहीं है, हम कैसे करते हैं, हल इलाहे देना, क्या उस पर कोई कर्ज है, माँ अलह देना, नहीं उस पर कोई कर्ज, हल अलहम देना, क्या उन सब पे कोई कर्ज है, माँ अलहम देना, उन सब पे कोई कर्ज नहीं। तो माँ के 2 मैनी क्या हुए, क्या और नहीं। अल्लाह से दुआ है वो हमें सबको कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, सुब्हानक। So I'm sorry, brother, I took also few minutes more. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर है ये अभी रिवील करवा रहे थे इला मा इंदा, इला इसका जो रेफरेंस है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मा साथ इन्नल्लाह मा साबिरीन, इंदा अम्र अला का, इंदा का, इसको हम इनके साथ मिलाकर पढ़ते हैं। अगर कोई काइंडली करवाना चाहे तो ये मेरे साथ इसको टेबल पर वाइज करवा लें। इलैही सर मैं उसकी करवाऊं? तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माँ का आपके साथ, माइया मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। चलिए ब्रदर ठीक है, अपने आप को म्यूट कर लें। ये इला इला इलाही, इसलिए आपने पढ़ लिया माना इंदा का। ये मैं आपको बता दूं, इलाज है उसकी तरफ, माना हमारे साथ, इंदा का आपके पास। ठीक है, इसलिए आंसर क्वेश्चन है, तो इसके मैं जो हैंड रेज करें काइंडली मैं उनसे पूछूंगा, वरना वो खुद से वो ना करें। हल्लाहु मा आ, जी सारा यूसुफ, हल्लाहु मा जी सर क्या क्वेश्चन किया है? हल्लाहु मा आ, स्क्रीन पे आ रहा है, अगर आप स्क्रीन पे हैं। नाम अल्लाहु माहू, हल्लाहु माहुम, नाम अल्लाह माहुम। जी इसका जवाब पे आप बताएं, हल्लाहु मा आका, नाम अल्लाहु माहुम, माई, माई, माका, हल्लाहु माकुम, नाम अल्लाह माअना। माना, गुड हो गए। अब अपने आप को म्यूट करें। ला मिन अन बी फी अला इला, ये हमने सारे हरूफ जर पढ़े, ये ज़हन में काइंडली रख लीजिएगा। मा और इंदा हरूफ जर नहीं है, ये इसम है। ये अक्सर उसमें क्विज में आ जाता है, तो फिर थोड़े से लोग परेशान होते हैं। मा और इंदा हरूफ हैं, हरूफ जर नहीं है। ठीक है, हर पान का हरूफ जर अलग होता है। कभी हरूफ जर अरबी में है मगर दूसरी ज़बान में नहीं होता, कभी हरूफ जर अरबी में नहीं होता बल्कि दूसरी ज़बान में होता है। हरूफ जर बदलने से मायने तब्दील हो जाते हैं। जैसे लकड़ी से या को मारा, लकड़ी से मारा या लकड़ी को मारा, इससे मायने चेंज हो जाते हैं। हर ज़बान का हर्फ जर अलग होता है। अमनतु बिल्लाहि, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। अमनतु में बी, अमनतु बिल्लाहि में बी हरूफ जर है, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, पर वो है हरूफ जर है। आई बिलीव इन अल्लाह, इन जो है ये हरूफ जर है। कभी हरूफ जर अरबी में मगर दूसरी ज़बान में नहीं होते। ये थोड़ा सा काइंडली आपने ज़हन में रख। ठीक है, फिर ली जो है हरूफ जर है लेकिन इंग्लिश में नहीं है, फॉरगिव मी। पर हमनी, रहम कर मुझ पर, जबकि अरबी में नहीं है, उर्दू में है और उसमें भी है इंग्लिश में। अच्छा, हर ज़बान में किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए कुछ ना कुछ अल्फाज होते हैं। ठीक है, जैसे हाजा, हाजा ये, हाजा ये, हाउलाई ये सब।
हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब, हाज़िही ये, हाउलाई का ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। अच्छा, इसका कोई आंसर क्वेश्चन देना चाहे? मन हाजा, मिस्टर दाऊद। हाजा मुस्लिम। हाजा मुस्लिम। मन हाउलाई, हाउलाई मुस्लिमून। हाँ जी, हाउलाई के साथ मुस्लिम नहीं आएगा, मुस्लिमून ही आएगा। मन जालिका, जालिका मुस्लिम। मन उलाइका, उलाइकल मुस्लिमून। उलाइका मुस्लिमून। जमा के साथ जुमा आएगा, वाहिद के साथ वाहिद आएगा। काइंडली अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज ब्रदर। हाजे की जो हाजा है ये मुज़क्कर है, हाजे ही मुन्नस है, ठीक है। इसी तरह जालिका वो, तिल का वो औरत, यानी कि फीमेल के लिए यूज होगा। हाजे ही ये, हाउलाई का वो सब, तिल का वो, उलाई का वो, दोनों की जो प्लूरल है वो सेम है। अच्छा, फेल की 3 किस्में। फेल माजी हम पढ़ चुके हैं कंप्लीट, वो काम जो हो चुका है। फेल मुदारे और अमर इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, टाइम शॉर्ट होने की वजह से तो मैं आगे समझाइज कर रहा हूँ। इसका सेट है पहला फाला, फतह, जाला। बेसिकली इसके हमने 4 सेट पढ़े। फतह, नसरा, ज़रबा, समिया। फतह, नसरा, ज़रबा, समिया। अब इसका एक छोटा सा फ्रेजेज है, वो इसको काइंडली आप याद रखें। कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दराबा इसलिए सुन लो, समिया, ठीक है। अब इसका काइंडली को टेबल कराए। फाला का तो मैं ये आईफोन सिस्टर हैं, ये सैयद हैं, कौन, ये जरा काइंडली करवा दें। सर फाला उसने किया, फालू सबने किया, फालता तूने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सबने किया, फालना हम सबने किया। ठीक, गुड हो गया। यानी ब्रदर एंड सिस्टर, इसका ये सिस्टर समिया। जाला के इस पे टेबल करा दे, जाला। फाला की तरह ये जाला। सिस्टर समिया आप कराना चाहेंगी? जाला सर मैं कर सिस्टर समिया को मैंने कहा, ये समिया है यहाँ पे सर। सिस्टर जरा पे आप करा दें। जी हम कर सकते हैं। जी करें। जाला, जाला उसने बनाया, जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सबने बनाया, जालना मैंने बनाया, हम सबने बनाया। ठीक, गुड हो गया। अगर इसका मैं आंसर क्वेश्चन करूं, हल जाला, नअम जाला, हल जालू, नअम जालू। चलिए ठीक है, आप म्यूट कर लें। कोई और ब्रदर मोहम्मद दाऊद, हल जालता, नअम जालतू, हल जालतुम, नअम जालना। गुड हो गया ब्रदर, ठीक है। जरा काइंडली सर ये मैं करूं? जी म्यूट करें, ये हो गया ना। देखिए ये हल जाला ये हो चुका है, जाला का टेबल हमने वैसे कर लिया, हल जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतू भी हमने कर दिया। इसी तरह नसरा, खलका, अबदा, ज़करा। नसरा उस मदद की उसने, खलका पैदा किया उसने, अबदा इबादत की उसने, ज़करा याद किया उसने। अच्छा, नसरा का कोई टेबल करवा दे। ये मुकद्दस मुर्तज़ा कौन है, ये काइंडली करवा दे। नसरा उसने मदद की, नसरू इन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जी बहुत गुड हो गया। अच्छा, हमने ये पढ़ा हुआ जैदन और जैदुन, ये तो आपको पता ही होगा ना। जैदुन इसका जो ये सब्जेक्ट होता है और जैदन उसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसी को हम आंसर क्वेश्चन करते हैं। हल नसरा जैदन, नाम नसरा जैदन, नाम नसरन। हल नसरू जैदन, नाम नसरू जैदन। अब ये कोई और सिस्टर करवा लें। सारा यूसुफ, सारा यूसुफ, जी सर। हल नसरता जैदन, नाम नसर तू जैदन, हल नसर तुम जैदन,
नाम नसर ना ज़ैदन। चलिए सबसे सारा इससे म्यूट कर लें अपने आप को। ये ज़ैदन से ज़ैदन ये हमने पढ़ लिया। हन नसरा ज़ैदन नाम नसरा ज़ैदन, हन नसरु ज़ैदन नाम नसरु ज़ैदन, हन नसरता ज़ैदन नाम नसरतु ज़ैदन, हन नसर तुम ज़ैदन नाम नसरना ज़ैदन। ज़रबा उसने मारा, समया उसने सुन लिया, अलीमा उसने जाना, अमीला उसने अमल किया। तो इसका जरा टेबल है। अच्छा, ज़रबा उसने मारा, ज़रब जो है उसको मारने को कहते हैं। अगर ज़रबा मसलन आ जाए तो उसने मिसाल बयान की, मिसाल बयान की। ठीक है, इसका जरा कोई काइंडली टेबल करवाएं। ये मनाहिल है, सिस्टम मनाहिल अपने आप को अनम्यूट करें। ज़रबा ज़रबा उसने मारा, ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। बहुत गुड हो गया। अच्छा, इसके साथ भी हम ज़ैदन लगा के आंसर क्वेश्चन करते हैं। मिनाल सिस्टर आप अपने आप को म्यूट करें। कुरतुल आइन सिस्टर, कुरतुल आइन। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान। अगर मैं पूछूं हल ज़रबा ज़ैदन, मा ज़रबन ज़ैदन, मा ज़रबा ज़ैदन, हल ज़रबू ज़ैदन, मा ज़रबन ज़ैदन, मा ज़रबू ज़ैदन। ठीक हो गया सिस्टर। सिस्टर फरानाज अपने आप को म्यूट करने। कुरतुल आइन सिस्टर फरानाज। जी सर। जी सिस्टर। यस हल सर। ज़रब, जी जी, हल ज़रबता ज़ैदन, मा ज़रबतु ज़ैदन, ज़रबतु ज़ैदन, हल ज़रबतुम ज़ैदन, मा ज़रबना मा ज़ैदन। ज़रबना ज़ैदन। हाँ जी, पहले बाकी ना बोला करें प्लीज। लेकिन जिस सिस्टर से पूछे, मुझे पता है आप लोगों को सारों को होते हैं, आप लोगों को सारे करना चाह रहे थे। देखिए, हल ज़रबा ज़ैदन, मा ज़रबा ज़ैदन, हल ज़रबू ज़ैदन, मा ज़रबू ज़ैदन, हल ज़रबता ज़ैदन, मा ज़रबतु ज़ैदन, हल ज़रबतुम ज़ैदन, मा ज़रबना ज़ैदन। समीअल्लाहु लिमन हमिद। इस एक सवाल है कि हम माँ की जगह ला भी लगा सकते हैं या नहीं? नहीं सिस्टर, ला नहीं लगा सकते। माजी के साथ हमेशा माजी ही माँ ही आएगा। ये आगे इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये थोड़ा सा मेरे पास टाइम शॉर्ट है, आगे आप आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। समीअल्लाहु लिमन हमिदा, ये समीअल्लाह का समी का समिया, समिया का काइंडली को टेबल करवाना चाहे जी। ये सिस्टर हैं गर्ल के नाम से, की गर्ल क्या है, ये जरा काइंडली करवा दें जी सिस्टर। समिया, समिया इसने बनाया, उसने सुना। समियो समया सुनना बेटा, समया सुनना, उसने सुना। समया इसने सुना, सुना। समियो इस इन सब ने सुना, समेअत आपने सुना, समेअत मैंने सुना, समेअतुम आप सब ने सुना, समीना। ये ब्रदर मोहिद हैदर आप अपने आप को म्यूट करें और करवा दें प्लीज। ब्रदर मोहिद हैदर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समया इसने सुना, समया इन सब ने सुना, समयता आप सब ने सुना, आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समयना हम सब ने सुना। ठीक हो गया। अच्छा, इसके आंसर क्वेश्चन इसके साथ अगर अल कुरान लगा दिया जाए, ठीक है। अल कुरान हो तो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट अल कुरान है, ठीक है। अगर मैं पूछूं हल समय अल कुरान, तो ये सिस्टर आमिन आमिन अमीन खान, ईमान खान, ईमान खान जी सिस्टर। नाम कुरान, इसका आवाज नहीं आई। हल समय अल कुरान, नाम समीउल कुरान, हल समय उल कुरान, नाम समीउल कुरान। जी ब्रदर दाऊद आप बताएं। हल समय उल कुरान, नाम समीअतुल कुरान। नाम समीउल कुरान, हल समय तुम अल कुरान, नाम समीअना अल कुरान। ठीक होगा, म्यूट कर लें अपने आप को भी, ठीक है। हल समय ये खाली अगर समय का करना तो हल समय नाम समय, हल समय नाम समय, हल समय का नाम समय, तो हल समय तुम नाम समय ना। देखिए अल कुरान ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, और अल कुरान है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके हम आंसर क्वेश्चन करते हैं। हल समय कुरान नाम समय कुरान, हल समय कुरान नाम समय कुरान, हल समय कुरान नाम समय कुरान, हल समय तुमुल कुरान नाम समय नल कुरान।
اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، چلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ من خیر. سبحان اللہ و بحمدہ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ابھی سر کاشف آپ سے آنسر کویسچن ہے کوئی اگر سوال ہے تو آپ سے انشاءاللہ. تھینک یو. جزاک اللہ. کیا نہیں تابو چاہیے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ برادر خیر. اوکے جی. So we get back to جی آئیے ہم اپنا سیشن شروع کرتے ہیں اور اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آج کی اس روین کی کلاس میں خوش آمدید. اور الحمدللہ دیکھیے ہم آدھا سبق مکمل کر چکے اور اب اس کی روین آج آپ سب لوگ کر رہے تھے. تو روین کے اس سیشن میں الحمدللہ میں دیکھا کہ سب لوگ بڑی محنت سے اور آپ لوگوں نے بڑی اچھی تیاری کی ہوئی ہے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ سب اچھے نمبر مڈ کوئز میں لے پائیں گے. یہ جو سیشن ابھی ہم انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں اس کا پرپز یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو کنڈکٹ کروا سکیں. یعنی آپ پورا مڈ کوئز اچھے طریقے سے آپ اٹیمپٹ کر پائیں تو اور زیادہ نمبر لے سکیں. تو ہم اس حوالے سے آپ کے لیے کچھ ایسی انسٹرکشنز ہیں جو اگر آپ کریں گے تو امید ہے کہ آپ بہتر طریقے سے اس کو کر پائیں گے. تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اس طرف. سب سے پہلے اچھا جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ نے جو بھی کامنٹ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. تو انشاءاللہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیے اور پھر آپ کیجیے گا. اچھا جی یہ ہماری سسٹر بتا رہی ہیں کہ شاید شی از ناٹ ویل. آپ سب دعا کریں اللہ انہیں صحت دے. تو کمنگ بیک ٹو دی اچھا اب دو میجر چیزیں اس میں آپ سے ڈسکس کرنی ہے. ایک کچھ انسٹرکشنز ہیں اباؤٹ کہ آپ کے کوئز کا فارمیٹ کیا ہوگا اور آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے، اور چند انسٹرکشنز یعنی کوئز کا جو ایکیڈیمک فارمیٹ ہوتا ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں. اور کچھ یہ ہے کہ آپ نے باقی جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے. تو آپ کا کافی حد تک ایکسپیرینس ہے، آپ لنکس کو پہلے سے استعمال کرتے ہیں. تو لنک پر ہی چونکہ یہ کوئز آئے گا آپ کے پاس تو یقیناً آپ کو زیادہ مسئلہ اس میں نہیں پیش آنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں میں چاہوں گا کہ آپ ان کا خیال رکھیں تاکہ کوئز کے درمیان جو ہے آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کیا جائے، نہ کرنا پڑے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی کل کوئز ہے، یہ آپ سب کو پتا ہے. کوئز کا وقت کیا ہوگا؟ کوئز انشاءاللہ 7 بجے شروع ہوگا 7 o'clock اور 8 o'clock تک اس کا ٹائم ہوگا. لیکن ہم کوشش یہ 60 منٹس میں بڑے آسانی سے کیا جا سکتا ہے. کوئز لنک پر آئے گا، آپ اس کو اٹیمپٹ کریں گے. اچھا یہ ہوم ورک کی طرح نہیں ہوتا کہ آپ جب مرضی اٹیمپٹ کریں. یہ جو ٹائم ہوگا 7 to 8 کا ٹائم ہے، ہم 30 منٹ ایکسٹرا آپ کو دے دیں گے تو 8:30 تک. 7 to 8:30 کے درمیان آپ اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. آپ اگر اس کے بعد یہ بند کر دیا جائے گا پھر آپ اس کو اٹیمپٹ نہیں کر پائیں گے. اسی طرح 7 o'clock ہی لنک شیئر ہوگا تو 7 بجے شروع کریں گے آپ، اور پھر آپ اس کو یعنی جو کلاس کا ہمارا ٹائم ہے وہ 7 سے 8 ہوتا ہے تو اس میں صرف آدھا گھنٹہ آپ کو
अच्छा, ये कह रहे हैं जी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन आपको वीडियो नजर आ रही है? वीडियो सर आपने स्क्रीन शेयर की ही नहीं है, क्योंकि ये तो रनिंग लेक्चर या जो है डिस्कशन सर आ रही है, तो आपकी आ रही है, तो स्क्रीन ही है। हाँ, अगर आप ये इसका मतलब आपका मतलब स्क्रीन से स्लाइड है तो इसमें स्लाइड शेयर नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीजें, बट आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया आपकी इस क्वेश्चन से कि हम इसको आइंदा राइटिंग में भी सामने लिख दिया करें। बहरहाल ये आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ये जितनी बातें मैं आपसे करूंगा ये रिकॉर्ड भी हो रही हैं और इंशाल्लाह ग्रुप में भी हम ये इंस्ट्रक्शन आपको सारी भिजवा देंगे। पहली बात मैंने आपको बता दी, कल आपका क्विज है 7 से 8:30 यानी 90 मिनट आपको उसके लिए मिलेंगे। क्विज जो दोहराई आज करवाई है आपको, सबक नंबर 1 से लेके 11, उसमें से आ सकता है कुछ भी, और क्विज के नंबर 70 या 80 हो सकते हैं। अभी मैं उस पर हम थोड़ा सा काम करके आपको इंशाल्लाह ग्रुप में कल ये डाल दिया जाएगा। 70 या 80 नंबर होंगे। आपको पास होने के लिए 50% नंबर चाहिए, यानी अगर 70 है तो 35, अगर 80 है तो 40 नंबर कम से कम मिनिमम टू पास द क्विज। तो मुझे बहुत यकीन है कि आप सब इससे ज्यादा नंबर लेंगे। एक अच्छे लेवल पे अगर आपकी तैयारी हो तो 40 मिनट्स, अगर आप आराम से सुकून से करेंगे तो 60 मिनट्स। उसके बावजूद हम आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 90 मिनट्स में ये क्विज हर सूरत हो जाएगा। अच्छी जल्दी ना कीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, तेजी से क्विज करने की कोशिश करते हैं कि शायद टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत अच्छा होता है, ऐसा मसला नहीं होता। तो फिर बाद में वो मुझसे झगड़ा भी करते हैं, हमसे लड़ाई करते हैं, AQTs के साथ लड़ाई करते हैं कि जी आपने वक्त बड़ा आपने वो कम दिया हुआ था। 90 मिनट्स इज अ गुड टाइम। आप आराम से सुकून से उसको कर सकते हैं। कोई मतलब आप आइडियली क्या करना चाहिए, आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और करते जाएं। और अच्छा, शुरू में प्लीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बिल्कुल शुरू में आपने अपना नाम नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना उसके अंदर। उसका फायदा ये होगा कि अगर गलती से कहीं आपसे सबमिट दब जाए तो क्विज जो है ना सबमिट नहीं होगा, वो आपसे कहेगा पहले नाम लिखिए। तो आपने नाम बिल्कुल नहीं लिखना वहां पे, कोई एक डॉट भी नहीं डालना, क्योंकि डॉट भी वहां डालेंगे वो सबमिट हो जाता है। तो जो नाम वाला आता है, जो कंपलसरी होता है लिखना, वो शुरू में नहीं लिखना, वो आखिर में लिखना है। जब आपने सबमिट करना है उस वक्त पूरा नाम लिखे, और पूरा नाम लिखना है प्लीज। फर्स्ट नेम या कम नाम नहीं लिखना, फुल नेम लिखा करें, उससे हमारे पास रिकॉर्ड में वो सही रहता है। हर होमवर्क में क्विज के अंदर अपना फुल नाम लिखा करें। अच्छा, ये हो गई ये बातें। कोई टेक्निकल इशू हो जाए, आपको पहले 30 मिनट्स दिए जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप अपने मोबाइल को, जो भी चीज आपने यूज करनी है उसको चार्ज कर लें पहले से। अगर लैपटॉप भी है चार्जिंग कर लें, लाइट जाने का मसला हो जाए। कल के लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी आप अपनी रखें। देखिए क्लास मिस होती है तो वो तो आप बाद में भी वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। होमवर्क भी मिस होता है लिंक आपका, तो आप बाद में पूरा हफ्ता होता है 5 दिन में कर सकते हैं। लेकिन क्विज आपको इसी टाइम के दरमियान करना है, 7 to 8:30, इसलिए उसकी पूरी तैयारी करके रखें। अच्छा, फिर आगे है कि जी आपको अगर पढ़ने में मसला हो, खासतौर पे जो लोग मोबाइल फोन के ऊपर कर रहे होते हैं, तो क्विज को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन को, जब टच स्क्रीन है, यूं उसको 2 उंगलियों से जब टच करके बड़ा छोटा करें, यानी एनलार्ज करें, एक्सपैंड करें, तो वो बड़ा भी हो जाता है ताकि आपको रीडिंग में आसानी हो, और फिर छोटा भी हो जाता है। एक बात। एक और बात ये है, जो एक होमवर्क में भी कुछ लोगों को मसला हुआ, हमारी वो शुरू में नहीं पता था, अगर आपको कोई क्वेश्चन पढ़ा नहीं जा रहा मोबाइल पर, खासतौर पे, लैपटॉप पे तो ये इश्यूज नहीं आते, टैब के ऊपर भी हो सकता है आप आए, तो आप यूं कर लें मोबाइल को टेक्स्ट, और ये याद रखें आपके मोबाइल पर वो स्क्रीन के दोनों ऑप्शन लगे हों कि वो स्क्रीन शिफ्ट हो जाए लैंडस्केप में, तो जो आगे ऑप्शन होंगे वो भी आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको पूरा सवाल ठीक तरह से नजर आएगा। तो ये सारी चीजें आपने यकीनन पूरे ख्याल से इसका ख्याल रखना है कि फॉन्ट पढ़ने के लिए, उसको मोड़ने के लिए, ताकि आपके कोई नंबर इस वजह से जो है वो जाया ना हो। मैंने जैसा पहले कहा कि बिल्कुल क्विज वैसे ही जैसे आपको होमवर्क का लिंक भेजा जाता है, ऐसे ही आपको क्विज का लिंक भेजा जाएगा, लेकिन इसका चूंकि नंबर ज्यादा है, इसके क्वेश्चंस भी ज्यादा होंगे, इसलिए इस पर वक्त भी ज्यादा लगेगा। अच्छा, आप अपनी एक्सरसाइज के लिए, आप रिवीजन तो कर रहे हैं, आप वर्कबुक को भी जरूर देखिए, हर जरिए से वीडियोस को देखिए, उस तरह से आप तैयारी करने की कोशिश कीजिए। क्विज के दरमियान आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज क्विज के दरमियान, होमवर्क में तो हमने आपको इजाजत दी हुई ना, आप किताब से पढ़ लें, PDF फाइल से पढ़ लें, वीडियो से देख लें।
क्विज के दरमियान आप किसी किताब से नहीं पढ़ सकते, ना ही आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं, ना आप किसी वीडियो को देख सकते हैं, ना आप पीडीएफ से देख सकते हैं। और ये प्लीज याद रखें कि ये हम इसलिए नहीं कह रहे कोई नंबर हमने तो नहीं लेने, आप ही ने लेने हैं, कि आपकी सेल्फ असेसमेंट हो ना कि आपने कितनी तैयारी की हुई है, आपने कितना अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है। और असल में तो अल्लाह हमें देख रहा होगा, लिहाजा मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी इस दरमियान किताब, पीडीएफ फाइल, वीडियो, उससे पहले 7 बजे से पहले तक आप जितना मर्जी देखें, जहां से मर्जी देखें, जहां से मर्जी तैयारी करें। और फिर अगर क्विज के दरमियान आपको किसी किस्म की कोई परेशानी हो जाए, कोई टेक्निकल इशू आ जाए, आई विल बी अवेलेबल, हमारे एक्यूटीज अवेलेबल होंगे। आइडियली आप मुझे डायरेक्ट सेंड करें ताकि आपका मसले को उसी वक्त हल किया जा सके। नमाज के सिर्फ 10 मिनट के अलावा मैं तकरीबन पूरा टाइम अवेलेबल हूँगा मोबाइल के ऊपर, जहाँ व्हाट्सएप का नंबर आपके पास है कि अगर आपका कोई सवाल आए तो मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दे सकूँ। अच्छा, सिस्टर जरफिया कहती है हम होमवर्क के दरमियान भी नहीं देखते कभी। नहीं सिस्टर जरफिया, आप होमवर्क के दरमियान देख सकते हैं और जरूर देखिए अगर कहीं फंस जाएं। बिल्कुल डिफरेंट फिलॉसफी है उसकी। वहां फिलॉसफी ये है कि आपकी तैयारी अच्छी हो, आप कोर्स को अच्छा सीखें। यहाँ है कि आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। होमवर्क करते हुए हमने ये शुरू में भी आपको बताया था, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, रुक जाएं, आप पीडीएफ से देखें, बुक से देखें, ताकि आप कंसल्ट करें और आपके वो जहन में पक्का हो जाए कॉन्सेप्ट। वीडियो देखें, जहां से मर्जी देखें, और होमवर्क में पूरे नंबर लें, अच्छी बात है, ताकि आपके ओवरऑल रिजल्ट अच्छा आए। सो सिर्फ क्विज के दरमियान ऐसा नहीं करें। तो ये बातें तो थी टेक्निकल इश्यूज, और ये सारी ये इंशाल्लाह आपको हम ग्रुप में भी कोशिश करेंगे आपको राइट अप में डल जाए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन कुछ देखा जा रहा है कि वो जो आपको आसान क्वेश्चन मिले और मुश्किल ना हो, तो 60 हो सकते हैं, 71 तक हो सकते हैं। 70 मतलब नंबर पे डिपेंड करता है, अगर 80 हुए तो कोशिश होगी 70 के करीब नंबर्स हों, और कोई 60, 64 या 61 क्वेश्चन हो, क्योंकि बाज़ क्वेश्चंस पे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। तो ये तो थी जनरल बातें। अब जो है ना, क्विज किस फॉर्मेट का होगा? क्विज का फॉर्मेट तकरीबन जिस तरह आपको होमवर्क्स आते रहे हैं, तकरीबन वही फॉर्मेट होगा। लेकिन होमवर्क्स में होता ही है, चूंकि पॉइंट्स कम होते हैं, तो बाजू का एक फॉर्मेट एक होमवर्क में नहीं होता, किसी और होमवर्क में होता है। अब जनरली क्या क्या होगी, नेचर क्या होगी क्वेश्चन की? नंबर 1, या तो आपको जनरल क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चंस जैसे आपको पूछा जाता है कि जी फलां चीज का खुलासा क्या है, नीचे ऑप्शन दिए होंगे, हर एक चीज के ऑप्शन दिए होंगे। तो ये तो हो गए आपके जनरल क्वेश्चन, इंटरप्रेटिव क्वेश्चन जो है। फिर आपको अरबिक टू अरबिक, अब आपका एक्सपीरियंस है, आप ये बोलचाल में कहते हैं ना मा दीनू का, तो आप कहते हैं दीनी अल इस्लाम, मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह। या हमने जो किए हैं बेसिकली तो वो वाले सारे आपको आएंगे जो आपने किए हैं कि हल दरबा जैदन, तो आप जवाब में क्या कहेंगे? नाम दरबा या ला दरबा। नीचे ऑप्शन दिए होंगे, आपने उसमें से सिलेक्ट करने हैं। तो इसलिए उस पर आपको वो ऑप्शन आराम से पढ़ें, तरतीब से पढ़ें, गौर से पढ़ें, और जेर जबर से भी फर्क पड़ता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा हर चीज को। ठीक है सर, एक बात पूछनी है, ये अभी पूछ सकती हूँ या बाद में पूछ लूं? अब आप पूछ लीजिए जी। सर, ये जैसे अभी आपने कहा माँ दराबा जैदुन, उसमें मैंने माँ की बजाय ला लिख दिया था, तो आप लोगों ने वो गलत हो गया, जो पिछले इसमें था लास्ट वाले होमवर्क में क्वेश्चन। तो माँ और ला सेम नहीं है ना के हिसाब से? हाँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। असल में अभी आपने माँ ही लिखना है जो हमने आपको बताया है। ये जो ला का कॉन्सेप्ट है, आज ब्रदर इजाज भी आपको बता रहे थे, हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, थोड़े ही दिन रह गए। तो माजी हम यूज कर रहे हैं, चूंकि दराबा हल दराबा जैदन, तो आप मा दराबा जैदन ही कहें। ठीक हो गया? अच्छा जी सिस्टर, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग ये हो रही है, आपको मिल जाएगी। अच्छा, बात मैं क्या कर रहा था? अरेबिक टू अरेबिक। अच्छा, एक तो आपको अरेबिक टू अरेबिक इसी तरह जो एक्सप्रेशन आते रहे हैं, उसके नीचे ऑप्शन होंगे, जो राइट है ऑप्शन वो आपने प्रेस करना होगा।
इसी तरह उर्दू टू अरबिक, उर्दू लिखी होगी और उसका उर्दू अरबी तर्जमा करना है। इसको जरा थोड़ी तवज्जो से कीजिएगा, प्लीज इशारे कर लीजिएगा, सिर्फ जहन से नहीं, इशारे हमने प्रैक्टिस के लिए किए हैं। क्या उसने मारा, दराबा उसने मारा, दराबू उन सब ने मारा। अब अगर वहां पे लिखा हुआ है तुमने मारा तो आप क्या कहेंगे? तो आपने याद करना है, अच्छा दराबा, दराबू, दरबता, तुमने मारा, आपने मारा, ये उसके लिए होता है। दरब तू, मैंने मारा, दरब तुम सब ने मारा, दरब ना, हम सब। तो इशारा आपको दुरुस्त जो आपकी तरफ लेके जाएगा। फिर अरबिक टू उर्दू, इसी तरह बिल्कुल जब अरबी का एक्सप्रेशन दिया उर्दू में करना हो तब भी अगर इशारे वाला इशारा कर लें, अगर कुरान की कोई आयत है या कोई रेफरेंस एक्सप्रेशन है वो याद कर लें, जैसे इन्ना, इन, अन्ना, अन्ना, ये सारे हमने किए हुए हैं या हरूफ भी किए हुए हैं। अच्छा, फिर आपको एक सिर्फ ऐसा टेक्निकल सवाल होता है, एक जो आप सब ने बहुत तवज्जो से करना है, जो थोड़ा सा टेक्निकल होता है। वो अभी होमवर्क में भी आप करते थे, जैसे कि इसम, फेल और हरफ में से कोई आपने फाइनल करना होता है कि दो एक जैसे होते हैं और एक को आपने ऑड वन आउट करना होता है, ऑड वन आउट। ये जरा थोड़ी सी सिर्फ सोच समझ के करने वाली चीज है। लेट्स से एक सवाल आया और उसमें लिखा हुआ था दराबा, और लिखा हुआ था नसरतु, और लिखा हुआ था दुनिया, ठीक है। तो अब देखें, अब आप खुद जरा, आप में से कोई बताना चाहेगा कि इसमें कौन सा मुख्तलिफ है? जी चलें, हमारे यहाँ लाइट चली गई। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि बेटे इसकी लाइट जरा फ्लैश लाइट ऑन कीजिए। जी, दुनिया, दुनिया मुख्तलिफ है। क्यों? दुनिया क्या है? ये क्या है? ये इसम है। तो हमने देखा कि अच्छा, तो आप इसी तरह पहले देख सकते हैं कि इनमें से इसम तो नहीं है, फेल तो नहीं है, हरफ तो नहीं है। पहले इस क्राइटेरिया पे लगा लें कि दो हरफ हैं, एक इसम है, दो फेल है, एक इसम है। इस तरह हो सकता है दो इसम है, एक फेल है, तो उसको आप अलग कर देंगे। एक तो ये हो सकता है। अच्छा, अगर वो ये नहीं होंगे तो ये हो सकता है कि वाहिद जमा हो, ठीक है। तो आपने जैसे अगर लिखा हुआ है, आपने देखा तो वो तीनों आपको फेल नजर आए, जैसे नसरा, दराबा और फतहना लिखा हुआ था। अब कौन सा मुख्तलिफ करेंगे आप इसमें से, बताएं? फतहना, नसरा, दराबा। माशाल्लाह सिस्टर सायरा कह रही है फतहना। क्यों आपने फर्क किया इसको, क्या वजह बनी? जी वजह बताइए, किस वजह से? हाँ, ये प्लूरल था। अब ये हमने तीनों देखे कि तीनों फेल हैं, अब फर्क कैसे करें? तो हमने कहा अच्छा वाहिद जमा देख लेते हैं। दो वाहिद के थे, एक जमा का था, आपने उसको अलग कर दिया। तीसरा ये हो सकता है कि मुजक्कर और मोन्नस का फर्क हो। किसका फर्क हो? मुजक्कर और मोन्नस का फर्क हो। तो उस सूरत में आप दो मुजक्कर होंगे, एक मोन्नस है, आप उसको क्रॉस आउट कर दें। दो मोन्नस है, एक मुजक्कर है, उसको क्रॉस आउट कर दें। तो इस तरह से दो जमा भी हो सकते हैं, एक वाहिद है, उसको क्रॉस आउट कर दें। तो ये एक सिर्फ सवाल है जिस पर आप लोगों को ज्यादा तवज्जो से इसको करने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया जी। तो ऑड वन आउट, रूट लेटर्स के ऊपर कोई एक आध सवाल हो सकता है जो आप जैसे देखते रहे हैं। शैतान का था शीन तो नून, और नासरा वगैरह का तो नून स्वाद रहा, आपको पता ही है। फ़अला का फ़ा आइन लाम, ये आपने देखे ही हैं। तो तकरीबन हमने हा मीम दाल, हम, हमदा, हामिदा, तो ये सारे ये एक दो सवाल इस पर हो सकते हैं। तो ये जी 8 डिफरेंट तरह के सवालात आपको मिड क्विज के अंदर आएंगे और आपने कोशिश करनी है कि आप उनको बड़े आराम से, तहम्मुल से, तसल्ली से करने की कोशिश कीजिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आप जितने सवालात पूछना चाहते हैं पूछिए। अच्छा, ये एक सिस्टर कह रही है कि कुछ मिड क्विज रह गए हैं और ये कुछ होमवर्क रह गए हैं और ये उसको मिड क्विज के बाद कर लें। जी बिल्कुल कर लें, कोई मसला नहीं है, कर लीजिए। अभी वो खुले हुए हैं, आप कर। जी ब्रदर ताहिर, अपने आप को अनम्यूट कर लें। Yeah, this one is better for live. जी सिस्टर मरियम।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मैंने पूछना था कि कल जो क्विज एज इट इज टाइम पे होगा, जैसे क्लास का टाइम है, लेकिन यहाँ पे बहरीन में 7:30 बजे मतलब उधर के 7:30 यानी इधर के 5:30 बजे तो मगरिब की अजान होती है, मतलब उसमें मैक्सिमम 10 to 15 मिनट जाते हैं, तो वो टाइम क्या कंपनसेट होगा या मुझे ही फास्टली करना पड़ेगा? मैं उधर नमाज भी पढ़ूं और फास्टली थोड़ा इसको करूं आप ताकि बड़े उसमें आराम कवर से करूं। सिस्टर नमाज पढ़ें, और 30 जी मिनट्स हमने पहले ही आपको कंपनसेशन के दे दिए एक्स्ट्रा। जी तो ठीक है ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं होगा, आराम से हो जाएगा इस वक्त में। ठीक है जी ठीक है थैंक यू सो मच। जिस ब्रदर ताहिर। सर मुझे आवाज नहीं आ रही थी शुरू से। अच्छा अब तो ये आ तो रही है ना? हाँ जी अब आ रही है। असल में आपका माइक का इशू होगा ना, कोई इशू होगा आपकी तरफ से। आपका माइक स्पीकर, सॉरी आपका चले स्पीकर रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं दोबारा सुन लूंगा जो मिस हुआ है। अभी इंशाल्लाह हम वीडियो इसकी लिंक डाल देते हैं, आप उसको सुन लीजिएगा। ठीक है जी। ये सिस्टर फौजिया हसनैन। अस्सलामुअलैकुम सर। सर आपने बताया फेल माजी के साथ ला नहीं लग सकता, सिर्फ मा लगेगा, तो जो इस दफा होमवर्क था उसमें मैंने लम लगाया था, लम भी तो डिड नॉट के लिए है, तो पास्ट में लम क्यों नहीं लग सकता? जैसे लम फ़अला उसने नहीं किया, तो इसकी क्या रीजन होगी? नहीं, हमने अभी तो आपको सिर्फ ला का बताया है, ऐसा कोई सवाल ही आपको नहीं किया गया, ना चीज पढ़ाई गई है, लिहाजा उन चीजों को अभी न छेड़ें और लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ अभी ज़हन में रख लें जो चीजें पढ़ाई गई है ना, पर्पस ये है, देखें बहुत सी चीजें होंगी आगे होंगी, तो मकसद सिर्फ ये है कि कॉन्सेप्ट्स आपको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाए जाएं। बल्कि अगली क्लास जो आ रही है ना आपकी, ये मिड क्विज के फौरी बाद वाली, इसमें इंशाल्लाह ये मा ला ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, उस वक्त करेंगे। अभी मैं बताऊंगा मिड क्विज है, लोग इस तरफ परेशान होंगे, लिहाजा लेट्स जस्ट लीव इट हियर। जी जी। आगे जो है कौन है? सिस्टर राफे हफ्सा। जी सिस्टर हफ्सा आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने एक सजेशन देनी थी। अभी आपसे कोई पूछ रहा था कि होमवर्क नहीं किए हुए, उसका मेरे ख्याल से बस यही हल है, क्योंकि तैयारी तो कर रहे हैं, तो अगर साथ साथ वो होमवर्क कर लेंगी तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी इन्होंने राय दी है कि आप कोशिश करें कि अगर होमवर्क रह गए थे तो वो सारे पूरे कर लें, तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, और अगर कर लिए हुए हैं तो उनको निकाल के एक दफा रिव्यू कर लें, तब भी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, और वर्कबुक को भी देख लें तो इंशाल्लाह सबसे बेस्ट हो जाएगी। बड़ी अच्छी राय दी है इन्होंने। जी सिस्टर जाफे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जैसा वो आपने लास्ट में कहा फा आ ला, वो जो फेल्स है, तो उसके बारे में किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है? फा आ ला 3 टुकड़े है इसके ना, फा आ ला। नहीं अच्छा, फ़अला आपसे पूछे जाएंगे। फ़अला तो पूरा एक फेल है ना, फ़अला। हाँ फेल है, हाँ, मगर लास्ट में आपने कुछ एक्सप्लेन किया, वो थोड़ा समझ नहीं आया फेल अच्छा के मैं लेके। दोबारा बताता हूँ सर। वो मादे का बताया था, मादे का रूट लेटर। हाँ रूट लेटर उसका जो है ना वो फा आइन लाम है। असल में जो असल हरफ होता है ये 3 वाले में, इसमें तो बहुत आसान होता है, अमूमन जो हमने पढ़े हैं तो उसमें वही जो 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 वर्ब है, पहला वर्ब जो सबसे पहला, जैसे हम यहाँ कहते हैं फातहा, फ़अला, दारबा, नासारा, ये सारे लेटर भी यही हैं तीनों। नासारा का नून, सामिया का सीन मीम आइन, तो इसमें तो भी मुश्किल नहीं है, वो आगे जाके आएगा जब ये रूट लेटर ढूंढने होते हैं। जी जी थैंक जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर ताहिर आपको अनम्यूट किया हुआ अगर आपने पूछना है तो। सर मैंने अर्ज करनी थी कि 7:30 बजे ईशा की नमाज होती है, तो मस्जिद में अगर जाना हो तो वो फिर लेक्चर तो उसमें मसला बनता है। जी अच्छा, ऐसे है कि आप कल क्विज के लिए देखें 7 बजे शुरू होगा, तो आप 20 मिनट उसको कर लें, साथ ले जाए मोबाइल, मस्जिद में बैठ के, अच्छा है, नेकी का काम है, फिर आप फर्ज पढ़ें और बाकी का क्विज कर लें, और वितर और आप ऐसे भी पढ़ें तो अच्छी बात। इसी तरह ही कर रहा हूँ, लेकिन वो दरमियान में फिर वो मसला जरा डिस्टर्ब हो जाए, हैंड फ्री लगा के मैं ले जाता हूँ मस्जिद में। अच्छा, बस वो फर्ज अदा करता हूँ और बाद में आ जाता हूँ। एनीवे सजेशन है कि थोड़ा सा अगर ईशा को इसमें एडजस्ट हो सकता है अगर, तो काइंडली। असल में आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हम जब टाइम बदलते हैं ना तो होता ही है कि इंटरनेशनली भी लोग बैठे होते हैं कोर्स के अंदर, तो बहुत ज्यादा मसला बन जाता है। एक स्टैंडर्ड टाइम सबको पता होता है, लोग उस पर बैठते हैं,
تو وقت ہم بدل نہیں سکتے. عشاء میں ویسے بھی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی اچھی, ویسے تو جماعت ہی سے پڑھنا اچھی بات ہے, بہترین یہی ہے. چونکہ اس میں تھوڑی فلیکسیبلٹی ہے, اس لیے میں بھی یہ قربانی دیتا ہوں کہ عشاء کی نماز جو ہے فرض اکثر بعد میں ادا کیے جاتے ہیں. تو بہرحال اب چونکہ وقت یہ ہے, آگے ہم انشاءاللہ ایک کورس شروع کریں جس کا ٹائم عشاء کے بعد ہوگا, لیٹ والا ہوگا, لیکن وہ بھی کچھ جگہوں پہ, کچھ ملکوں میں عشاء کی نماز درمیان میں آ جاتی ہے اس کے باوجود. جی سر یہ اب دیکھیں نا, ابھی سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ٹائم صحیح ہے, اس کو بدلے نہیں. ہماری سب لوگوں نے ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے نا اسی وقت کے اوپر, تو اس لیے اس کو بدلنا پھر مسئلہ بن جاتا ہے. جی اور کوئی سوال ہے تو بتائیے جی, ورنہ ہم یہ نغمہ غفور سر چیٹ میں پوچھ رہی ہیں, سر آپ نے جو لاسٹ کویسچن سمجھایا تھا اسم فعل حرف والا, وہی ریپیٹ کر دیں جس میں ایک کو سیپریٹ کرنا ہوگا. اچھا جی میں ریپیٹ کرتا ہوں. آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں سسٹر ناظمہ تو ان میوٹ کریں تاکہ میں آپ سے پوچھوں تو آسانی بھی ہو آپ کو. کہ اگر میں کہوں فی اور فتحتو اور علا, یہ تین آپشن ہیں, تو آپ ان میں سے کس کو الگ کریں گی؟ جی سن نہیں ہیں آپ؟ وہ کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے میوٹ ہے. بردر اجاز یہ کائنڈلی ان کو ان میوٹ کیجئے. سسٹر کر دیے سر, کر دیے. جی سر. جی کوشچن ریپیٹ کر دیجئے سر. جی میں کہہ رہا ہوں اگر ہو فی, فتحتو اور علا یہ تینوں, تو آپ ان میں سے کس کو الگ کریں گی؟ فی, فتحتو اور علا. جی کس کو الگ کریں؟ اس میں علا پر فتحتو. ویری گڈ. یہ اب آپ نے کیوں الگ کیا فتحتو کو, وجہ کیا ہے؟ سر میں نے تکا مارا, مجھے نہیں سمجھا. نہیں یہ تکا آپ کے برین میں تھا, ایسے نہیں لگ جاتے تکے. آپ کے برین نے انکانشیس میسج, وہ ظاہر ہے کانشیسلی شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, لیکن وہ بات کو سمجھ رہے. فتحتو جو ہے نا یہ فعل میں سے, افعال میں سے ہے. یم فعل فعلوا فتح, فتحت فتحتو, فتحتم فتحنا, یہ فعل ہیں. اور جو فی اور علا ہے یہ حرف ہیں, یہ دونوں حرف جار ہیں. تو آپ نے کہا کہ اچھا یہ حرف دو ایک جیسے ہیں اور یہ آڈ ون آؤٹ ہے, تو آپ نے فتحتو کو سلیکٹ کیا. بالکل یہی بات میں نے سمجھائی تھی. سوری کہ ایک سوال ایسا ہے جس میں آڈ ون آؤٹ, یعنی آپ نے دیکھنا ہے اسم فعل حرف کی کرائیٹیریا پر, آپ نے دیکھنا ہے واحد جمع کے کرائیٹیریا پر اور مذکر مؤنث کے کرائیٹیریا پہ. تو جو ایک چیز الگ سی نظر آئے اس کو آپ ٹک کر دیں کہ یہ الگ ہے, وہی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاک اللہ سر, اب سمجھ آ گئی. الحمدللہ. سر ایک میرا ہے, جی ایک تو ٹائم بالکل چینج نہ کریں کیونکہ ہمارا سڈنی کا تو پہلے ہی ڈے لائٹ سیونگ کی وجہ سے 1 گھنٹہ فارورڈ ہو گیا ہے. آپ ہی کی وجہ سے ہم ٹائم بالکل بدل نہیں رہے. شکریہ, جزاک اللہ. اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو آپ روٹ ورڈز والا بول رہے ہیں کہ روٹ ورڈز آپ ورڈ دیں گے اور اس کے ہم نے سیپریٹ کرنے ہوں گے یا روٹ ورڈز دیے ہوں گے اس کا ورڈ بنانا ہوگا؟ اچھا ایسا کریں, آپ اس کو بھول جائیں, ہم یہ سوال ہی نہیں دیتے. ہوا بھی تو میں آئی ٹرائی کہ اس کو نکال دیں. یہ ویسے بہت آسان ہے. دیکھیں میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں. اگر ایک ادا بھی گیا تو یہ جیسے لکھا ہوگا نون سواد رے, تو یہ کس کے روٹ لیٹر ہیں؟ نیچے لکھا ہوگا, لیٹ سے نیچے لکھا نہیں, نیچے ہو سکتا ہے ناصرہ نہ لکھا ہو, نیچے لکھا ہو نصرتو فتحتو فعلتو. ٹھیک ہے, تو اب آپ بتائیں کس کے روٹ لیٹر ہیں یہ نون سواد را؟ نصرتو. ویری گڈ, کیونکہ نصرتو کا روٹ جو پہلا ہے وہ ہے ناصرہ, تو نون سواد را ناصرہ روٹ لیٹر. تو روٹ لیٹر بنیادی طور پہ وہ بنیادی حروف ہوتے ہیں جن سے مل کر وہ فعل بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح, آپ بالکل صحیح سمجھ گئے, پرفیکٹ. جی اور آپ پلیز آپ بڑی اسپیشل دعا سب کے لیے کیا کریں. آپ بڑے ایفرٹ کر کے اس کورس میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور رات کے اس حصے میں بھی.
تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں آپ. جی کوئی اور سوال ہے؟ جی ہاں، یہ ہماری ایک سسٹر بتا رہی ہیں کہ میں نے اس سوال کی خاطر پورے کورس کے روٹ لیٹر یاد کیے تھے. اچھی بات ہے، آپ کی تیاری اچھی ہوگی. جی انشاءاللہ سبھی ایک دوسرے کے لیے دعا کیجیے. جی اور سوالات ہیں تو بردر اجازت لے جی لیں. ہواوے M10 میٹ جی پوچھیں پلیز. یہ آپ نے روٹ لیٹر کا بتایا، تو جب آپ کوشچن دیں گے تو اس میں انگلش میں روٹ لیٹر لکھا ہوگا یا کوئی اور زبان ہوگی اس میں؟ نہیں ایسے لکھا، اس کو ہم کہتے ہیں مادہ سر. مادے. جی حروف کے مادے، حروف کے مادے. ٹھیک ہے جی، بڑا اچھی بات آپ نے پوچھی ہے. دیکھیں یہ بات چیزیں میں بالکل ذہن میں نہیں رکھتا. اچھا آپ نے پوچھ لیا. جی حروف کے مادے، جی جو لوگ سن رہے ہیں ذہن میں رکھیں اس کو. ٹھیک ہے، شکریہ. جی سسٹر حمیرہ. جی السلام علیکم. وعلیکم یہ السلام. جو نیچر آف کوسچن جو آپ نے کہا تھا کہ 8 ہیں، لیکن جو میں نے جاٹ ڈاؤن کیے وہ 6 ہیں سر. بس وہ پیسے لے جاؤ. ایک سمری، ایک سمری عربک ٹو عربک، اردو ٹو عربک، عربک ٹو اردو، پھر یہ ٹیکنیکل کوسچن تھا سیپریٹ کا، اور ایک روٹس. تو یہ 6 بنتے ہیں، لیکن آپ نے کہا یہ 8 ہیں، تو میں نے مس تو نہیں کر دیے کوئی؟ میں ایک منٹ لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ. بیسیکلی 8 ہوتے ہیں، اور وہ جنرلی یہی ہوں گے. کچھ سوالات ایسے ہوں گے ان کی نیچر، ہاں جیسے قرآنک ٹیکسٹ میں سے جو کویسچن پوچھے جاتے ہیں، ویسے تو وہ بھی جنرل کویسچن میں آتے ہیں. تو جنرل کویسچن میں عموماً ایک اردو سے اردو ہی ایک ٹیکسٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن قرآنک ٹیکسٹ میں ہو تو اس کو ہم الگ کیٹیگری لیتے ہیں. بیسیکلی جنرل کویسچنس میں قرآنک ٹیکسٹ الگ ہے، اور عربک ٹو عربک خاص طور پہ یہ والی ہے جو یہ کانورسیشن والی ہے، اس کو ہم قرآنک ٹیکسٹ کنسیڈر نہیں کر رہے. تو اس لیے ایک یہ الگ ہو جاتی ہے ٹائپ. اسی طرح اگر قرآنک، یہ دو وہ بنیادی طور پر میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اگر قرآنک اردو ٹو عربک ہو تو وہ بھی الگ ٹائپ لیتے ہیں. تو وہ فال کرتی ہے اردو ٹو عربک اینڈ عربک ٹو اردو میں. یہ دو کیٹیگریز بیسیکلی ان کی دو بن جاتی ہیں. ایک ہم یہ کانورسیشن والے میں سے لیتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ قرآن میں سے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی جزاک اللہ. سر یہ سسٹر پوچھ رہی ہیں یلد کا مجہول یولد، اور مجہول بھی، ہاں پلیز یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھ لیا. بیسیکلی مجہول پیسو وائس کو کہتے ہیں. یہ بہت اچھا ہو گیا آپ نے پوچھا ہے. کچھ لوگوں نے یہ ویسے بھی پوچھا تھا. مجہول کس کو کہتے ہیں؟ مجہول پیسو وائس کو. ٹھیک ہے جی. سر کویسچن میں اردو اینڈ انگلش بوتھ ورڈز کے استعمال کیجئے، جیسے روٹ ورڈز کی اردو نہیں معلوم تھی. نہیں، اب یہ تو شاید ممکن نہیں ہوگا کہ اس میں وہ دونوں لکھے جائیں، وہ مسئلہ بن جاتا ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا. اس کے علاوہ تو کوئی ایسا لفظ ہے نہیں جس میں مسئلہ ہوگا. مجہول پیسو ہے، اس کو ضرور ذہن میں رکھ لیں. اور اسی طرح یہ جو مادے، حروف کے مادے جو ہیں روٹ لیٹرز کہلاتے ہیں. جی جی اینی ادر کویسچن؟ آئی فون ہے جی، ان کو بھی لے لیں. یہ سسٹر پوچھیں آئی فون. یہ سسٹر انمیوٹ کر لیں. آپ نے پھر میوٹ کر لیا. جی اب بولیے. جی آپ کا مائک ان میوٹ ہے، آپ بولیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. کوسچنز میں کوئی چوائس بھی ہوگی یا ویسے سارے کا سارا کرنا ہوگا؟ اچھا جی، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہ بالکل ٹپیکل کلاس روم کویسچن ہے. یہ بچے پوچھتے ہیں کہ چوائس بھی ہونی چاہیے. نہیں جی، اس میں چوائس نہیں ہوگی. آپ نے سارے کرنے ہوں گے. پہلے ہی دیکھیں اتنی چوائس ہے. ہر سوال میں آپ کو 3 آپشن دیے ہوتے ہیں، 4 آپشن دیے ہوتے ہیں. تو کتنی چوائس ہے نا. دیکھیں تو پیپر آپ نے پورا کرنا ہے سارے کا سارا. ٹھیک ہے، تھینک یو. جزاک اللہ. سو میرا خیال ہے ابھی سوال تقریباً تمام ہو گئے. آپ واٹس ایپ پر بھی سوالے سے کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھ سکتے ہیں. مڈ کوئز سے پہلے بالکل سکون سے مزے سے کریں. یہ جان کر کریں کہ آپ نے بہت سے ایگزام دنیا میں دیے ہیں، لیکن یہ سب سے بہترین پیپرز ہیں جو آپ دینے جا رہے ہیں، اور اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے آپ یہ دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ آپ سب کو اس میں کامیاب بھی کرے گا.
اور آپ سب کے اچھے نمبر بھی آئیں گے. تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم. فرائیڈے کو مدرسہ اس کا ٹائم 6 سے 8 ہے، تو میں یہ ٹیسٹ کل نہیں دے پاؤں گی، تو میں آگے تو پڑھ سکوں گی. جی اگر خدا نخواستہ آپ سے ٹیسٹ چھٹ جائے تو آپ کورس پورا کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے بعد میں ہم سے رابطہ کر لیجیے گا. ایک دن آپ کو کرے گا. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پریشان کر سکتے ہیں، کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی، تو سمجھ نہ آئے تو ضرور پوچھیے، کسی سے پوچھیے، مجھ سے پوچھیے، سارے ایکٹیویٹیز بھی آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے بھی پوچھیے. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک هذا الوباء والمرض والخوف. اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن شرور کل ما خلق. اللہم افرغ قلبنا بحب العلم. اللہم افرغ قلبنا بحب العلم. اللہم افرغ قلبنا بحب العلم. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. سر آج اسلام آباد میں لائٹ کا شارٹ فال ہو گیا ہے، کل ایسا ہوا تو پھر اسلام آباد میں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ موبائل چارج رکھیے گا، آپ کو لنک انشاءاللہ ضرور آ جائے گا. دیکھیں وہ تو چارجنگ کے اوپر ہے نا، آپ نے تو موبائل پہ کرنا ہے، میں تو لنک آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ. تو اس لیے لائٹ چلی جائے کچھ بھی ہو، کل کوئز انشاءاللہ ہوگا. آپ نے موبائل پر کرنا ہے. لیپ ٹاپ چارج رکھیے، اپنی ڈیوائسز کو پہلے سے چارج رکھیے. ایک آلٹرنیٹ رکھ لیجئے، گھر میں آج کل تقریباً ہوتی ہیں سب کے پاس، تو اس پر کر لیجئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ حافظ.